But when Krishna brought his chariot between the two armies, specifically, particularly in front of Bhishma and Dronacharya, by seeing them all, Arjuna got bewildered. Just imagine a situation wherein if Krishna would have placed the chariot of Arjuna in front of Duryodhana, so this situation would not have occurred, right? Because by seeing Duryodhana, Arjuna would have feel some anger, grudge, and fighting attitude towards Arjuna. Because Arjuna and party they had done all kinds of mischievous activity towards Arjuna and Pandavas. They tried to disrobe Arjuna's wife Draupadi. So Arjuna had all kinds of grudge and anger for Kauravas. So just imagine a situation wherein if Krishna would have brought the chariot in front of Duryodhana, then this situation would not have occurred. What Arjuna is now feeling. But Krishna intelligently, purposefully brought the chariot in front of Bhishma, and therefore Arjuna developed such kinds of feeling and emotions, wherein his mind started reeling, his Gandiva boy started slipping down, his body was burning, his body was trembling, quivering, his mouth was drying up. So all kinds of symptoms he started showing. He was overwhelmed with grief and then started giving all kinds of reason, dharmic reason, ethical reason, moral reason, humanitarian reason. So all kinds of reason he gave that if I kill them all, then women will become widow. So demoniac people will indulge into adultery with women. So Varna Sankar population will take place. And if society is filled with the polluted population, Varna Sankar population, then whole society will be corrupted and all kinds of community projects will be devastated. And I will be the cause of all of these things. I will be the cause. Arjuna started blaming himself. So Arjuna said, Krishna, I'm not going to fight. And then he cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot. So that is the first chapter we have nicely covered thoroughly. So today, yesterday, some first verse only we discussed the purport of the first verse. So today we'll continue from there. So let us chant some prayers. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते वासुदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. Hare Krishna, welcome everyone. So, as usual, we'll start with quiz, but not fresh quiz. I will take those quiz only which I had shared yesterday in the night Google form, but many of you again did not attend. So I'll request all of you to kindly attend the quiz. It is very, very important. By attending the quiz, you know that how much understanding you have developed, so how much knowledge you have gained in the class. So you become more कॉन्शियस कि मैं अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, पेजेस को सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, so मुझे अच्छे से अटेंड करना चाहिए क्लास को, नोट्स बनाना चाहिए. सो यू आर मेजरिंग योर सेल्फ बाई अटेंडिंग द क्विज.
So I'll share you the screen. You can see how is your performance. So here you can see yesterday's quiz. There were 10 questions. Every day there will be 10 questions which will come in the group. The link will come, so you all can attend, but only 11 people have attended. So first question was, how many verses are there in second chapter of Bhagavad Gita? कितने श्लोक हैं भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर में? सेकंड चैप्टर 72. कौन बताएगा? 72. How there are 72 verses. So option C will be correct. Second question, what are the things needed to follow Bhagavad Gita? कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? All of the above. All of the C, right? Enthusiasm, determination, patience. So all the threes, उत्साह, निश्चय एंड धैर्य, ये तीनों चीज चाहिए होती है इंथुजियास्टिक होना है कि यस आज भी मैं क्लास अटेंड करूंगा, डिटरमाइंड होना है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन आ जाए थोड़ा हम टाइम निकाल के, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि मान लो कोई चीज समझ नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आप अटेंड करते रहो, आपने मैसेज करो, पूछो हमसे क्लास में पूछो या अपने सीनियर से पूछो, एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And third question is, or what is the name of second chapter of Bhagavad Gita? Contents of the Gita summarized. Option C is correct. How many sections are there in second chapter? कितने sections हैं? 5. 5 sections. Very good. Can you name those sections? Can you सकते हैं आप? नहीं. फर्स्ट सेक्शन का नाम है अर्जुना's confusion and submission till verse number 10. Then from Sankhya Yoga, about spirit soul, analytical study of the soul, which is called Sankhya Yoga. So that is second section. Third section is, sorry, performing prescribed duty, right? So that is from verse number 31 to 38. Then fourth section is from 39 to 53. That is Buddhi Yoga. That is most important section. We'll discuss that. Buddhi Yoga. And then from verse number 54 to 72, last verse, the last sections, that is symptoms of one situated in transcendence. So these are the 5 sections in which Bhagavad Gita second chapter is divided. So very systematically we are going and we'll be discussing all the sections so that you all can connect and understand also and practically implement in your life when it is required. So option A is correct. While is Lord Krishna addressed as Madhusudana by Arjuna? Second. So Arjuna wants Krishna to kill demon of misunderstanding. Krishna killed demon Madhu. So option both A and B will be correct. So option C is correct. Option both option A and B is correct. So why is Lord Krishna addressed as Madhusudana? So both options will be correct. What is self-realization? Compassion for the soul, not for the body. So compassion for the soul is self-realization. We discussed yesterday. Purpose of Bhagavad Gita. क्या है भगवद गीता का पर्पस? To get a lot of name, fame and money, to help a person enjoy materially, for getting good material relations, to remove lamentation of ignorant man. So of course option 4 will be correct. What will happen if family tradition is lost? One Shankar population will be prominent. People will have more suffering. Population will be happier than before. New generation will get a chance to start more perfect practice. No. So option one will be correct. First one will be correct. One Shankar population will be prominent. What is responsible for? Who is responsible for our suffering? We ourselves are responsible.
symptoms. So we had discussed this ninth question very thoroughly. Ki we only are the responsible. Symptoms Arjuna showed after seeing his kinsman. He was overwhelmed with joy. No. He was overwhelmed with grief and compassion. Yes. So the option B is correct one. So these are 10 questions, very simple question, but when you attempt these questions, so you check yourself and you become more serious in Bhagavad Gita classes and understanding also. So we'll see the responses, how many people have attended and what are their results. So Yash Chaudhary has got 10 out of 10, 9, Parth 10, Daksh again 10, Dipti 10, Bhavya 10, Radha 6, Piyush 8. So only 11 people have attended the quiz, and this is your result. So many of you have got 10 out of 10. That is very nice, really applaudable. So I again request all of you to kindly attend the quiz. It will be very nice. So okay, let us continue our discussion. I'll share the PPT. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Okay, so contents of the Gita summarized. Our session is dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of Worldwide Hare Krishna Movement. So second chapter has 72 verses, already discussed, divided into 5 sections. So these are the 5 sections. Now Arjuna's eyes brimming with tears, that is 2.1. कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना. तो जब मधुसूदन ने अर्जुन के ये सिचुएशन, ये हाल देखा कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं, बेविल्डर हो गए हैं, सो और अर्जुन की आंखों में आंसू आ रहे हैं, सो कृष्णा बोलना शुरू करते हैं. सो 2.1 में संजय बोलते हैं और 2.2 और 2.3 कृष्णा बोलेंगे. सो 2.1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें परपोर्ट बहुत अच्छा प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है. ही वाज एक्चुअली गिविंग वेरी पावरफुल इंस्ट्रक्शन. सो जैसे इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं आप लोगों के, जो काम आएंगे, हमेशा काम आएंगे, आज नहीं, क्योंकि अर्जुन जैसा सिचुएशन हम सब लोगों का है. हम सब लोग अर्जुन जैसे सिचुएशन में आ सकते हैं या होंगे. सो हम देखेंगे अभी अर्जुन एक और रीजन देंगे कि मैं अगर एक ऐसा किंगडम मिल जाए मुझे जो कि अनराइवल्ड किंगडम है एंड सॉवरेनिटी लाइक दैट ऑफ हेवनली किंगडम, ऐसा भी किंगडम अगर मुझे मिल जाए जिसमें स्वर्ग का जैसा आधिपत्य हो, ऐसे ऑपुलेंस हो और कोई दुश्मन ना हो, फिर भी मैं जो एंजाइटी में हूँ, जो मैं पजलिंग सिचुएशन में हूँ, मैं जो परप्लेक्सिंग सिचुएशन में हूँ, इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा. मतलब कि कोई भी चीज कृष्णा अर्जुन को इस परप्लेक्सिंग सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता. अर्जुन ऐसा फील कर रहे हैं. ही वाज सो डिप्रेस्ड नाउ. सो ये डिप्रेसिंग सिचुएशन हमारे साथ भी या तो है या तो हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज today's world, you see how competition, comparison, we are living in such a world where people are comparison and so much of negativity. So definitely all these situations will occur. So we have to be well equipped in advance. We should be well equipped in advance with ammunition. Ammunition आप समझते हैं, अस्त्र शस्त्र से ये डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हमें इन्फ्लुएंस करे, हम तुरंत उसको किल कर दें. ये राक्षस जो ये कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब डीमंस हैं और इनको हमें किल करना है. और तभी हम किल कर सकते हैं जब हमारे पास वेपन ऑफ नॉलेज है. व्हेन वी हैव नॉलेज, वेपन ऑफ नॉलेज. अदरवाइज हम हार जाएंगे. विल बी सकम टू नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, एंड लाइफ कैन बी वेरी वेरी ट्रबलसम. सो आप सब लोगों को
इसमें जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप इसको अटेंशन देके समझिए। सो पहला पॉइंट क्या कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं, मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। पहला पॉइंट है, अगर आपको मटीरियल कंपैशन फील हो रहा है किसी के प्रति, या लैमेंटेशन, आप किसी चीज को लेकर लैमेंट हो रहे हैं, या आपकी आंखों में टीयर्स है अर्जुन के जैसे, दैट मीन्स you are ignorant of the real self. And the second one, compassion for the eternal soul is self realization. We should have compassion, of course, but for the soul. The soul is suffering because of this body, so we should help him so that he may get out of this bodily concept of life. This body is actually giving the problem. Soul can never be into problem suffering. So हमें क्या करना है, कंपैशन तो फील करना है लोगों के प्रति, बट सोल का कंपैशन। एंड देन परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हमें ओवर पावर कर रखा है। वी आर कंप्लीटली टेकन ओवर बाय डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक अर्जुना। सो इसलिए अर्जुन जो है कृष्णा को मधुसूदन कह के एड्रेस करते हैं, क्योंकि कृष्णा जो है मधु डीमन को किल किए थे, इसलिए अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कृष्णा जो है मेरे अंदर जो डीमन बैठ गया है उसको भी मारें। एंड देन प्रभुपाद एक्सप्लेन्स दैट how it is senseless to rescue the outwards. Agar drowning in the ocean and we go and we try to rescue his dress, outward dress, and we say that see how we have saved. So actually that is not real saving. Real saving is we have to protect the real person. In the same way, we should protect the soul, not this body. Body is covering, just a covering. The real person is Atma. सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट लाइन आप पढ़िए, वन हु डज नॉट नो दिस, जो ये नहीं जानता और लैमेंट करता है आउटवर्ड ड्रेस के लिए, ही इज कॉल्ड शूद्रा अननेसेसरली। जो हमें पता ही है कि बॉडी टेम्परेरी है, बॉडी की डेथ होगी। सो एक जो क्षत्रिय है, जो अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन को लैमेंट नहीं करना चाहिए, बट अर्जुन शूद्र के जैसे लैमेंट कर रहा है। सो पर्पज, फिर प्रभुपाद बताते हैं पर्पज ऑफ भगवत गीता क्या है। Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. So this is the purpose of Bhagavad Gita. Just see how it is very much practical, relatable to all of us, to dissipate the lamentation of the ignorant man. So lament कौन करता है? अगर आप पहला याद करें, पहला इंस्ट्रक्शन, we'll go back. इसमें देखो, मटीरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। जो इग्नोरेंट है वही लैमेंट करता है, राइट? और यहाँ पर्पस ऑफ भगवद गीता क्या है? टू डिसिपेट द लैमेंटेशन ऑफ द इग्नोरेंट मैन। कमिंग टू द सेकंड वर्स, नाउ कृष्णा स्टार्ट स्पीकिंग। कृष्णा बोलते हैं कि अर्जुन, तुम तो क्षत्रिय हो, हाउ दीज इम्प्योरिटीज हैव कम अपॉन यू। तुम तो बहुत जोश में थे, यू आर फुली फायर्ड अप कि मैं युद्ध करूंगा। नाउ यू आर एक्टिंग लाइक अनार्य। सो कृष्णा बोलते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना। ओ अर्जुन, तुम ये विषम परिस्थिति में, जब तुमको युद्ध करना चाहिए उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, कुतस्त्वा कश्मलम, ये मल, ये इम्प्योरिटीज तुम्हारे हार्ट में कहां से आ गई? कुतस मतलब कहां से, मलम कश्मलम इदम, ये जो मल है, इम्प्योरिटीज है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, ये उपस्थिति जो है, ये सिचुएशन, सर्कमस्टांस, ये विषम है। ये यहाँ पर ये इम्प्योरिटीज, ये ऐसा सिचुएशन जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, ये नहीं दिखाने का प्लेस है। ये विषम परिस्थिति, यहाँ पर तुम ऐसे कर रहे हो, तुम, और तुम अनार्य जुष्टम, तुम आर्य की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम अनार्य की तरह बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, आर्य मतलब वन हु नोज द प्रोग्रेसिव वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वन हु नोज दैट I am not this body, I am spirit soul. Spirit soul belongs to Krishna. Soul is eternal. Soul can never be cut into pieces. Soul can never be destroyed. Anybody who knows this, he is called Arya. So nowadays, many people, they claim themselves as Arya. There are particular group also.
They claim themselves as Arya, but actually Arya means one who knows the progressive value of spiritual advancement, development. So इसलिए कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं तुम अनआर्य की तरह, अनइंटेलिजेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। आर्य तो प्रोग्रेसिव वैल्यू ऑफ लाइफ को जानता है। तो तुम अगर ऐसा करोगे सो एक्चुअली यू विल नॉट गो टू हायर प्लैनेट्स बट टू इनफेमी। तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अनार्य अर्जुना, तुम अपनी अकीर्ति करवा रहे हो, इंसल्ट करवा रहे हो, इनफेमी करवा रहे हो अर्जुन। और लोग बोलेंगे कि अर्जुन जो कि कृष्ण का डिसाइपल फ्रेंड था वो ऐसा कर दिया, तो तुम्हारे कारण मेरी भी इंसल्ट होगी। सो एक्चुअली दिस इज नॉट बेफिटिंग यू अर्जुन। सो कृष्णा चेस्टाइज करते हैं अर्जुन को। कृष्णा पैसिफाई नहीं कर रहे हैं, कृष्णा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अरे अर्जुन देखो, तुमको कृष्णा अर्जुन को याद नहीं दिला रहे हैं, अरे यही कौरव हैं जो तुम्हारे तुम लोगों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश किया, तुम्हारे भाई को जहर पिला के मारने की कोशिश किया, तुम्हारी वाइफ को वहां असेंबली में डिसरोब करने की कोशिश किया। कृष्णा ये सब नहीं बोल रहे हैं। पूरी भगवत गीता आप देखेंगे कृष्णा ये सब वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करते। इनफैक्ट कृष्णा टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर टू मेक अर्जुना अगेन फायर्ड अप। अगर हम होते तो अर्जुन को दूसरा वाला अप्रोच लेते, एंड दैट इज नेगेटिव अप्रोच, बट कृष्णा इज टेकिंग पॉजिटिव अप्रोच। सो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट in this verse if you see 2.2, so Ved Vyas writes as when Krishna starts speaking, then Ved Vyas writes Shri Bhagavan Uvacha। अगर आपके पास भगवद गीता थोड़ा खोल के देखिए आप लोग। I request everyone to kindly keep everyday Bhagavad Gita in front of you while we are having classes. By this you can relate the discussion and you can enjoy more. So भगवद गीता आप खोलिए 2.2, उसमें आप देखेंगे कि वेद व्यास जी जब वो क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा। अगर आप इससे पहले आप देखेंगे तो जब धृतराष्ट्र ने बोला था तो वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाचा। जब संजय बोलना शुरू किए तो संजय क्या लिखते हैं, संजय उवाचा। जब अर्जुन बोल रहे हैं तो अर्जुन क्या लिख रहे हैं, अर्जुन उवाचा। उवाचा मीन्स बोलना, संस्कृत में उवाच मतलब स्पीक। लेकिन जैसे कृष्णा बोलना शुरू किए तो वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कृष्णा उवाचा, करेक्ट। वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाचा। सो ये वर्ड प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेद व्यास जी क्यों यहाँ श्री भगवान लिख रहे हैं। सो ये केवल एक शुद्ध भक्त जो वेद व्यास की परंपरा में आ रहा है, जैसे शिला प्रभुपाद जी वेद व्यास जी की गौड़ी मध्य ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय इस परंपरा में आ रहे हैं। तो क्योंकि वेद व्यास जी ने ये नॉलेज जो है मध्वाचार्य को दिया, फिर परंपरा गुरु परंपरा के थ्रू ये फाइनली प्रभुपाद तक आया। सो they all know each other's mind. So Prabhupada knows the mind of Ved Vyas. Why Ved Vyas is writing Shri Bhagwan? So Prabhupada ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। I would strongly request all of you to kindly read that particular purport. मुझे पता है कि आप लोग बहुत बिजी हैं, बिल गेट से भी ज्यादा बिजी हैं, सो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। सो हियर ओनली आई विल शेयर। तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ परपोर्ट, दिखाऊंगा कि कैसे वेद व्यास जी श्री भगवान उवाचा जब लिखते हैं तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। So here you can see I think it is visible, Krishna and the supreme personality of Godhead are identical. So कृष्णा को भगवान क्यों लिखा, क्योंकि कृष्णा ही भगवान है। सो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं therefore Lord Krishna is referred to as भगवान, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान इज द अल्टीमेट इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ। द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज रियलाइज्ड इन 3 phases। अच्छा, दो वर्ड आते हैं, एक ईश्वर आता है और एक भगवान वर्ड आता है। सो ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, भगवान मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रूथ के 3 फेज हैं, उसमें 3rd फेज जो है वो भगवान बोला जाता है उसको। ये थोड़ा डिटेल में है, हम लोगों को बहुत वेग अंडरस्टैंडिंग है भगवान का। सो मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि भगवान मतलब क्या है। एक तो सब लोग बोलते हैं हम ईश्वर ईश्वर ईश्वर। सो एक्चुअली ईश्वर इज नॉट द सुप्रीम, ईश्वर इज नॉट सुप्रीम लॉर्ड, ये हमें समझना है। ईश्वर संस्कृत में जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कंट्रोलर।
ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, अल्लाह मीन्स कंट्रोलर. सो बोलते हैं ना अल्लाह, अल्लाह मीन्स ऑल्सो कंट्रोलर. अल्लाह विष्णु सहस्त्र नाम में जो भीष्म पितामह ने कृष्णा को ग्लोरीफाई किया था विष्णु सहस्त्र नाम से, तो उसमें एक नाम अल्लाह भी बोला था. क्या बोला था? अल्लाह. किसने बोला था? भीष्म पितामह ने. और ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है जो साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है स्पेशली, ये 1000 नाम है विष्णु के, वो कृष्णा के लिए विश्व पितामह एड्रेस कर रहे हैं और उसमें एक नाम अल्लाह आता है. सो अल्लाह या ईश्वर इसका मतलब होता है कंट्रोलर. सो कंट्रोलर कैन बी एनीवन, इवन यू आर आल्सो कंट्रोलर, मी इज आल्सो कंट्रोलर. वी आर कंट्रोलिंग. एक मैनेजर है कंपनी में, वो भी कंट्रोल करता है 10-15 लोगों को. एक टीचर है स्कूल में, वो भी कंट्रोल करता है. एक डायरेक्टर है कॉलेज का, वो भी कंट्रोल करता है. सो हर एक लोग ईश्वर हैं. वी ऑल आर ईश्वरास, बट नन ऑफ अस आर परम ईश्वर. सो वही यहाँ पर वेद व्यास जी जो प्रभुपाद हैं परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे. सो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. सो ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर तो सब लोग हैं लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है. इसलिए एक वर्ड आता है जब कृष्णा को एड्रेस करते हैं, परम ईश्वर. तो ईश्वर परमः कृष्णा और सच्चिदानंद विग्रह, और उनका एक फॉर्म है वो कैसा है? सच्चिद आनंद का बना हुआ है. इसलिए कृष्णा जो है इटर्नल है और वो फुल ऑफ नॉलेज है, सेकंड चैप्टर में आएगा, और आनंद में रहते हैं हमेशा. कभी आप कृष्णा को नहीं देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं बहुत, नहीं. कृष्णा पर्सनालिटी इज ऑलवेज ब्लिसफुल. And Anadir Adir Govinda, he is the cause of all causes and nobody is cause of Krishna. And Sarva Karan Karanam, he is the cause of all causes. तो कृष्णा के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कृष्णा इज परमेश्वर. सो एनीवे, सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईश्वर एंड परमेश्वर. और जो भगवान वर्ड है ना, भगवान, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ का थर्ड फेज है. अभी एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या होता है? एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन्स 2.16 आप अगर देखेंगे ना सेकंड चैप्टर में ही 2.16, अगर आपके पास भगवद गीता हो तो आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. 2 सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 16. So you can open if you have Bhagavad Gita. You will see that the definition of absolute truth is explained. There it is said that वदन ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अन्यस्तो अन्योस तत्वदर्शिभिः. तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रूथ का डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो anything which exists eternally, that is truth, and which does not exist in all the three phases of time, that is called asat, means temporary. तो सत और असत का डेफिनेशन बताया गया 2.16 में. ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत. जो सत है, जो ट्रुथ है, वो क्या है? इसमें अभाव नहीं है. मीन्स ये कभी खत्म नहीं होता, वो इटरनली एग्जिस्ट करता है. इन ऑल द पास्ट में भी था, अभी भी रहेगा, और फ्यूचर में भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा, so that is called सत, मीन्स ट्रुथ. अदरवाइज असत, जो exist, which does not exist eternally, that is called asat, means temporary. So absolute truth means in all the three phases of time, if it is existing, that is called absolute truth. So हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू धर्म में, जब किसी की डेथ होती है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है. सो बॉडी इज पेरिशेबल, बॉडी डज नॉट एंड्योर, बॉडी डिमिनिशेस. सो इसलिए बॉडी क्या है? ये असत है, टेम्परेरी है. टेम्परेरी, असत मतलब टेम्परेरी. सो अगर मैं अपनी बात करूं तो 30 years before, this body was not existing. After say 50, 40, 60 years, this body will not exist. That means this body is not absolute truth. So what is absolute truth? Just try to ponder over in your surrounding. What is something which is absolute truth? Means it was there in the past since millennium, it is there now, and it will exist eternally in the future. What is that? So you will find that nothing is there. Only spirit, soul, and Krishna, these two personalities are absolute truth. So Krishna is absolute truth because we spirit soul belong to Krishna, therefore we are also part of absolute truth. So Krishna is absolute truth
So now Krishna is understood in 3 phases. How he is understood? In 3 phases. In fact, किसी भी इसको समझने के लिए 3 phases होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा ये. अदरवाइज ये समझ पाना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है. इसमें जो स्क्रीन पे वदंति तत्व विदस तत्वम यस ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको 3 फेजेस में समझा जाता है. जो सीयर्स ऑफ एब्सोल्यूट, जिन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखा है, जाना, वो बोलते हैं. और वो क्या है? 3 फेज: ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. ब्रह्मन, ये भागवतम से श्लोक लिया गया है. भागवतम से श्लोक लिया गया है. इसमें 3 फेजेस बताए गए हैं. क्या क्या? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. ये एब्सोल्यूट ट्रूथ के 3 फेज हैं. तो जो भगवान है वो 3rd फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एब्सोल्यूट ट्रूथ का. अब ये तीनों में क्या अंतर? ये परमात्मा अलग, भगवान अलग, हाँ अलग हैं. और ये ब्रह्मन अलग, हाँ अलग है. तीनों में क्या अंतर है मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ. 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. एक तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हाईलाइटेड पोर्शन येलो के नीचे वाला, बहुत अच्छी एनालॉजी प्रभुपाद लेके समझाते हैं. इसमें बताते हैं कि जैसे आप रूम में बैठे हो, सूरज निकल गया मॉर्निंग में, और आप रूम में जस्ट सो के उठे हैं, तो सूरज की रोशनी आप देखते हैं, बोलते हैं सूरज निकल गया, है ना. जस्ट बाय सीइंग द सन शाइन यू सी दैट, यू से दैट sun has come in the sky. So in fact sunshine is not the sun, but by seeing the sunshine you see the sun. Correct? So that is the first of knowing the sun. So you know the sun, you see the sun by seeing the sunshine sitting in your room. So this is called energy or Brahman understanding of the sun. Brahman को इंग्लिश में बोलते हैं energy. So this is the beginning. This is not the complete understanding of the sun. First level of understanding. Now go to the next level. अब आप रूम से बाहर आते हैं, बाहर निकल के देखते हैं सूरज को. सूरज, sun is like a रेड कलर, मॉर्निंग में रेड कलर होता है. सो आप रेड कलर का एक डिस्क के जैसा है, एक प्लेट के जैसा आपको दिखता है. सो दैट इज सेकंड अंडरस्टैंडिंग. पहला अंडरस्टैंडिंग था एनर्जी विच इज ब्रह्मन. सेकंड वन इज लोकलाइज्ड और परमात्मा अंडरस्टैंडिंग. लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन. आप देख रहे हैं, नहीं सन एनर्जी ही नहीं है. सनशाइन एक्चुअली में सन से आ रही है, और सन कैसा है? डिस्क के जैसा है. अब ये भी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं, क्योंकि सन डिस्क के जैसा नहीं है. सन इज मिलियन टाइम्स, 1000 टाइम्स बिगर देन द अर्थ. सो when you understand through the science, or if you could go to sun planet and see, you can understand the complete understanding of the sun. कि sun एक complete एक planet है, उसमें लोग रहते हैं जिनकी बॉडी फायर की बनी हुई है, और जो सन चमक रहा है एक राजा है, इनका नाम विवस्वान है, और रथ पे बैठे हुए हैं, ये घूम रहे हैं, और ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल्स. सो दीज आर दी 3 डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग. सो पहला क्या था? ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा और लोकलाइज्ड, एंड तीसरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. और सो ये यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया गया है. और एक बहुत सिंपल, और जो कि अभी के हिसाब से मैं आपको अगर बताऊं आपके लैंग्वेज में, तो जैसे ही ये क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, तो डेली आपको एक ग्रुप में मैसेज आता है. करेक्ट? और वो मैसेज मैं भेजता हूँ. उसमें रहता है कि आज का टॉपिक क्या रहेगा, क्लास में क्या डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपने मेरा मैसेज देखा, तो आप तुरंत समझ जाते हैं प्रभु का मैसेज आया. सो प्रभु ने मैसेज किया. सो बाय सीइंग द मैसेज यू सी मी एक्चुअली, बट एक्चुअली यू आर नॉट सीइंग मी. अगर पहली क्लास की बात करें, जो लोग पहली बार मुझे क्लास में देखे थे, सो क्लास में देखने से पहले जब आप लोगों ने मेरा मैसेज देखा होगा, सो आप सोचोगे हाँ कोई तो है मैसेज कर रहा, शायद यही क्लास लेंगे. आपने मुझे देखा नहीं था. सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, जब आप मेरा मैसेज देखते हैं और बोलते हैं अच्छा प्रभु का मैसेज आया, सो यू नो मी बाय रीडिंग द मैसेज, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट मी. करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड एनर्जी और ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग. क्या है वो? ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग. जब आप टाइम हो जाता है 7:45, लिंक को क्लिक करते हैं आप, और क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं. सो आप मुझे देखते हैं, अच्छा ये प्रभु जी ने मैसेज किया था, ये प्रभु जी हैं जो मैसेज कर रहे थे, टॉपिक लिखे थे और लिंक शेयर किए थे. सो वो पहला वाला अंडरस्टैंडिंग था. अभी आपको दूसरा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ये प्रभु जी हैं, ऐसे दिखते हैं, ये तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये है इनका, ये ऐसे भगवद गीता एक्सप्लेन करते हैं. सारा अंडरस्टैंडिंग मेरे बारे में आपको पता चला. लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये तो आप अपने मोबाइल में जो आप देख पा रहे हो मुझे उतना ही समझ पा रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड और परमात्मा अंडरस्टैंडिंग. और आप सब लोगों के मोबाइल में मैं प्रेजेंट हूं. मैं तो यहाँ बैठा हूँ जयपुर में, लेकिन आप सब लोगों के मोबाइल में भी हूँ मैं.
आप सब लोगों के मोबाइल में, सबके मोबाइल में, जितने लोग आएंगे लिंक ज्वाइन करेंगे सबके मोबाइल में पहुंच जाऊंगा मैं, जस्ट मिस्टिक पावर ऑफ माइंड, सबके मोबाइल में पहुंच जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ। बट ये भी कंप्लीट नहीं है, आप मुझे अपने मोबाइल में देख के आप मेरे बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइक मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ क्या है, क्या ये छोटा सा पीछे व्हाइट स्क्रीन ही है, बस इतना ही है, नहीं। सो जब आप यहाँ आएंगे मंदिर, मेरे से पर्सनली मिलेंगे, बातें करेंगे, मंदिर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, सारी एक्टिविटीज, कीर्तन, कृष्ण बलराम यहाँ पर, और प्रसाद होता है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आके हमसे मिलेंगे तो आप मेरे बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जान पाते हैं। जब आप मेरे साथ रिलेशन एस्टैब्लिश होगा और मेरी लाइक आप जान पाएंगे। दिस इज कॉल्ड भगवान और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। जस्ट सी these are the three phases of understanding absolute truth. In fact, any truth, किसी भी ट्रूथ को समझने के लिए तीन फेज होते हैं, उसी तरीके से absolute truth को भी समझने के लिए तीन फेज हैं। तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। सो ब्रह्मन क्या है, जो एनर्जी, जो एक सेक्ट है, स्पिरिचुअल सेक्ट है, जो बोलते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, तो वो केवल पहली अंडरस्टैंडिंग अटके हुए हैं। पहली अंडरस्टैंडिंग मतलब ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग नहीं, बस उनको वो उसके बियॉन्ड नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ब्रह्मन ये एनर्जी, ये जो मैसेज किया वो किसी व्यक्ति ने किया, ऐसा नहीं कि मैसेज ऐसा कुछ है जो मैंने व्हाट्सएप किया, नहीं, मैसेज एक व्यक्ति ने किया, तो व्यक्ति कौन है? उसी तरीके से ब्रह्मन ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, व्यक्ति है। सो कुछ मायावादी लोग होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, जो निराजय से कवितापंथी और ये बहुत सारे ये ब्रह्म कुमारी और सो मेनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, ब्रह्म जो है वो निराकार है, एनर्जी, बट वो केवल पहला अंडरस्टैंडिंग है। गलत नहीं बोलेंगे हम, बट केवल पहला अंडरस्टैंडिंग है। अभी उनको और आगे जाना, दैट इज कॉल्ड परमात्मा, कि भगवान सबके हृदय में और सारे एटम्स में निवास करते हैं। जैसे मैं आप सब लोगों के मोबाइल में हूँ, दैट इज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। उसी तरीके से जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, कृष्ण है, उनका लोकलाइज्ड एस्पेक्ट सबके हार्ट में लगता है। कृष्णा इज reflected in everyone's heart and in the atoms also. So this is called mind. So कृष्णा हम सब लोग के हार्ट में बैठ के हम लोग सैंक्शन करते हैं, हमारी सैंक्शन करते हैं, हमें हमारी एक्टिविटीज को विटनेस करते हैं, और हमारी एक्टिविटीज के हिसाब से अगला नेक्स्ट बॉडी में आता है। So that is done by Paramatma. So ये परमात्मा अंडरस्टैंडिंग जो हमें रिवील देते हैं। Sometimes you are sitting in the exam hall और कोई फॉर्मूला आपको याद आ गया, you are scratching your head, suddenly आप मतलब तो कहाँ से आता है परमात्मा गाइडेंस। So this is called परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। ये जो निराकार वाले लोग ये नहीं कर सकते, निराकार वाले केवल ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, बट परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट भगवान पर्सनल, परमात्मा भी सब नहीं है, सबके हार्ट में जो है परमात्मा है, और जब हम बॉडी में परमात्मा का भी नहीं, वो जो परमात्मा है, वो जो लोकलाइज्ड इलेक्शन जो हार्ट में है, उसका कनेक्शन है। वो कृष्ण जो ब्रह्म है, जो कि पर्सनल फॉर्म का जो लोग हम निवासते हैं, उनका ये लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है। सो थर्ड comes as personal aspect, that is भगवान aspect, जो कि कृष्ण है, और उनका एक फॉर्म है, उनका एक घर है, वो लोग हम जाते हैं वो, और अपने लीलाएं करते हैं वहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा नहीं कृष्ण अकेले हैं। जैसे कि आप अगर आपने मोबाइल देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि पीछे बाल वाइट और बैठे बस प्रभु अकेले हैं, नहीं, हम अकेले नहीं है, वो आपको लग रहा है हम अकेले हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से हमें भी लग रहा है कृष्णा अकेले हैं, वो रो रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, यहाँ नहीं, कृष्णा इसलिए नहीं आते। कृष्णा जैसे मैं आया हूँ, आपको इनलाइटन करने के लिए, उसी तरीके से कृष्णा को लोग यहाँ पर हम लोगों को इनलाइटन करने के लिए, हमें यहाँ से जगह से जगह ले जाने के लिए। सो कृष्णा वो धाम जहाँ पर अपने मसाल जाते हैं, वहाँ से यहाँ लेते हैं, और ज्ञान बोल रहे हैं, और ये सारा नॉलेज बता रहे हैं, और एक्चुअली में आचार्य बताते हैं कि ये जो भगवद गीता इज लव लेटर ऑफ कृष्णा फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज़ कृष्णा लव्स अस so much, but we have rebelled against Krishna. We are not loving Krishna. So Krishna is writing a love letter to all of us. Read this love letter, how much love you all, you are suffering here,
please understand and read my this love letter and feel my love and come back to me. So this is love letter of Krishna. Bhagavad Gita is love letter of Krishna for all of us. So we should feel like this. So ये तीन understanding ये जो क्या है ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान. So I think बहुत अच्छे समझ में आ गया और कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं. यही अंडरस्टैंडिंग है इतना टाइम बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग ये धारणाएं बना रखे हैं, मिसकॉन्सेप्शंस. भगवान है, एब्सोल्यूट है, निराकार है. नहीं, ये केवल पहला अंडरस्टैंडिंग है. ब्रह्मन उसके ऊपर परमात्मा का भी है, उसके ऊपर भगवान अंडरस्टैंड. भगवान मींस he has a personal form, he has a abode, he is having activities with his devotees in the spiritual world. We also can join that abode and we also can enjoy with Krishna eternally. So ये है भगवान के अंडरस्टैंडिंग, एब्सोल्यूट ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, तो इसके बाद अब प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान का डेफिनेशन पराशर मुनि ने दिया वो क्या है. तो भगवान उसी को बोलते हैं इसके. तो पराशर इसी ये डेफिनेशन देते हैं. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य राष्ट्रिय ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य शैव शरणम भगत दीगड़ा. पराशर इसी जो व्यास जी के फादर हैं, किसके फादर हैं? फादर ऑफ वेद व्यास. वो ये डेफिनेशन देते हैं. क्या बोल रहे हैं? द सुप्रीम पर्सनालिटी हु पॉजेसेस ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम. आपको याद करना ये अच्छा है ना. टोटल 6 आर देयर. पहला क्या? ऑल रिचेस, दूसरा ऑल स्ट्रेंथ, तीसरा ऑल फेम, चौथा ऑल ब्यूटी, पांचवा ऑल नॉलेज एंड छठवा ऑल रिनंसिएशन. ही इज कॉल्ड भगवान. So, कोई अगर बोल रहे मैं भगवान हूँ तो ये डेफिनेशन से चेक करो. आजकल बहुत सारे लोग गॉड मैन, राम रहीम, आशाराम, so many राम लॉर्ड, they are so many lords. सब अपने आप भगवान बोलते हैं. साईनाथ, साई राम, सब लोग राम बनना चाहते हैं. लेकिन आप यहाँ देखो ये अच्छा क्वालिटी अगर उनके अंदर है तो आप उनको भगवान बोलो. क्या है? ऑल रिचेस, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी. स्किन पे कोई रिंकल्स नहीं होने चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए पर्सनालिटी. कोई भी देख अट्रैक्ट हो. जैसे नहीं दाढ़ी, बाल पक रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है और फिर भी बोल रहे हैं हम भगवान हैं, श्री श्री हैं, हम हैं श्री श्री. नहीं, ये नहीं, ये भगवान की डेफिनेशन नहीं. ऑल नॉलेज होना चाहिए. कोई पूछा अच्छा आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं तो बोलते हैं जो जानता है वो बताता नहीं, जो बताता है वो जानता नहीं. What nonsense is this? ये सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको. क्या बोलते हैं? अगर आप पूछने अच्छा ये लाइफ का गोल क्या है तो क्या बोलते हैं? जो जानता है वो बताएगा नहीं, और जो बता रहा है इसका मतलब वो जानता नहीं. तो एकदम मीठे मीठे वर्ड्स में बोलते हैं आपको. आप लोग बड़ा सही बोल रहा. इसका मतलब ये जो हमारे गुरु जी हैं सब जानते इसलिए नहीं बताएंगे. ऐसा नहीं, ये इल्यूजन है, घोर इल्यूजन. और हम ये तो चलो ठीक है, एक लेवल की मूर्खता है. उसके नेक्स्ट लेवल की जो अल्ट्रा लेवल की मूर्खता क्या है? मूर्ख लोग जो जाके ऐसा जब सुनते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं हाँ ये तो भगवान है. तो हम लोग जो ऑडियंस वो ज्यादा मूर्ख हैं. वो तो मूर्ख है ही, हम लोग ज्यादा मूर्ख हैं, इसलिए हमें इंटेलिजेंट होने. सो ऑल नॉलेज एक भगवान के एक लक्षण है. एंड ऑल रिनंसिएशन, ये सब होने के बाद भी वो रिनंसिएंट है. वो आप उसको भगवान बोलो. एनीवे, तो इस तरीके से ये भगवान का डेफिनेशन यहाँ पर प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये भागवतम में भी आता है ये श्लोक. सारे इनका सब लोग भागवतम इज द राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स. जहां भगवद गीता एंड हो जाता है वहां से भागवतम शुरू होता है. भागवतम इतना मोटा है, 30 बुक्स लाइक भगवद गीता जितनी मोटी है ऐसे 30 बुक मिला दो तो भागवतम हो जाएगा. इतना मोटा है भागवतम. उसमें अथाह ज्ञान है. भागवतम में यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है. माँ की पेट में एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, फर्स्ट नाइट, 7th नाइट, 1 आफ्टर 1 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, कैसे डेवलप होता है, ये सारा डिटेल्स भागवतम में दिया हुआ है. Bhagavatam is unparalleled scripture. Bhagavad Gita is a Krishna's instruction and Bhagavatam is about Krishna. Bhagavatam में भगवान सब पास टाइम्स दिए गए, कृष्ण के साथ कहाँ दिए गए? श्रीमद् भागवत. ABCD foundation and Bhagavatam is advanced study.
सो भागवतम में ये श्लोक आता है जब सारे अवतार का एक्सप्लेन करते हैं, नरसिम्हा, वराह, राम, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, इस तरीके से सारे अवतार एक्सप्लेन करते हैं। फिर हैं भागवत में, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सी, ये जो सारे एक्सपेंशन में एक्सपेंशन है या एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन है किसके? कृष्ण के, और कृष्ण ही भगवान है। तो फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस इज कृष्णा, ये भागवतम डिक्लेयर कर रहा है। बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल, दे आर कंफ्यूज्ड। इनफैक्ट भागवतम में आप पढ़ोगे उसमें लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं, यह परम ब्रह्म स साक्षात त्रिगुणा जीव समज्ञता भगवंतम वासुदेव न स प्रियोस्मे। भक्तम वासुदेव, भगवान वासुदेव हैं, वही परम है, और उनका जो भक्त है प्रपन्न, जो उनको सरेंडर कर दिया है, लाइफ डेडिकेट कर दिया है, दैट पर्सन इज वेरी वेरी डियर टू मी। कौन बताइए? लॉर्ड शिवा। सब लोग बोलेंगे लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं। फिर भी बहुत सारे मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि शिवा सुप्रीम है। भाई यहाँ भागवतम जो कि सारे शास्त्रों का एसेंस है, भागवतम बोला, भागवतम में वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि भगवान शिव खुद बोल रहे हैं कि भगवंतम वासुदेवम, जो वासुदेव वही भगवान है, परम पुरुषोत्तम है, और उनके जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय, ऑफ कृष्णा दी मोस्ट। सो ये तो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखो भागवतम डिक्लेयर कर दिया है, ब्रह्मा जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो सब डिक्लेयर कर रहे हैं, वेद व्यास जी डिक्लेयर कर रहे हैं, जो सारे शास्त्रों के रचयिता हैं लॉर्ड शिवा डिक्लेयर कर रहे हैं, ब्रह्मा जी डिक्लेयर कर रहे हैं। फिर भी हम क्यों साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान ये सब में फंसे हुए हैं? ये इल्यूजन ब्रेक करना, हमें इससे बाहर उठना, हमें मानना है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो शास्त्र बता रहे हैं। और हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में याद करो, आप लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे गीता महात्म्य में, वहां भगवान शिव क्या बोल रहे हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी नंदन, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एको कर्म तस्य देवस्य सेवा। हाँ, पूरा क्लियर बोल रहे हैं यार, फिर भी हम कंफ्यूज हैं। वाह क्या बात है। सो हम लोगों को एनलाइटेंड होना है, हम लोगों को नॉलेज में आना है, शास्त्र को फॉलो करना है। ऐसे किसी को सुन लिया, वीडियो देख लिया, एपिसोड देख लिया, सीरियल देख लिया, या कोई दादा दादी नाना नानी सुन लिए, और भाई साईं राम, आसा राम, राम रहीम, दिस राम दैट राम, सब भगवान, ये इनको भगवान मान लिया। व्हाट नॉनसेंस। नो, सो वी शुड फॉलो स्क्रिप्चर्स। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू दैट कृष्णा इज द ओनली सुप्रीम लॉर्ड। सो इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक के स्टार्टिंग में वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाचा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कृष्णा उवाचा, कृष्णा बोल रहे हैं, ये नहीं लिखा उन्होंने क्या लिखा? श्री भगवान उवाचा। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, नो? बट ये तभी हमें समझ में आता है जब हम परंपरा में प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरुओं से हम लोग सुनते समझते। सो आज मुझे और फर्दर वर्सेस लेने थे, बट टाइम हो गया, सो यहीं पर एंड करेंगे। Again, I'm going to share the link in the chat box. All of you, please click the link of today's class. There will be 10 questions. आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें से 10 questions आपके चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैसेज में आ रहे हैं आपके पास। आपको क्लिक करके अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको क्विज अटेंड करना है in order to check your learning. Okay, so I am sharing the हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप लोगों के पास मैसेज आ चुका है, आप क्लिक करके आप क्विज को अटेंड करें और चेक योर अंडरस्टैंडिंग। सो आज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया है। एब्सोल्यूट ट्रुथ के 3 फेज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। 2 एग्जाम्पल लेके, एक सन वाला और ये जो क्लास वाला मैंने बताया आपको। और कृष्ण कैसे सुप्रीम लॉर्ड है, कैसे ईश्वर और परम ईश्वर में अंतर होता है। हम सब लोग ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। भगवान जो है वो थर्ड अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है,
एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब जो टाइम के तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो बॉडी है, जो रिलेशनशिप है, जो ये वर्ल्ड है, जो हमारा पोजीशन, सब असत है, टेम्परेरी है, जो कि खत्म हो जाएगा। बट हमारा आत्मा और भगवान कृष्ण ये इटर्नल है, और हमारा कृष्ण से जो रिलेशन है वही इटर्नल है। देयरफॉर वी शुड वर्क इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वी शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद, और हमें ये रिलेशनशिप आर्टिफिशियली नहीं बनाना है। हमारा रिलेशन भगवान के साथ है, जो कि मैंने बोला, कृष्णा लव लेटर लिख रहे हैं, भगवद गीता, भगवद गीता इज लव लेटर। कृष्णा इज सेइंग आई लव यू सो मच, सो यू आल्सो हैव लव टुवर्ड्स मी, बट यू हैव फॉरगॉटन, सो प्लीज रिवाइव। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। आप क्विज अटेंड करिए और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ओके, एंड विद दिस आई विल स्टॉप। आई होप ऑल हैव क्लास, sorry, you are attending the quiz.